स्टेट्स ऑफ मैटर हम कर रहे थे, आज हमने कंप्लीट करना और कुछ क्वेश्चंस देखने स्टेट्स ऑफ मैटर के। बट फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस वन और टू थिंग्स। एक तो पहले हमने रिलेशंस देख रहे थे, प्रेशर टेम्परेचर, pressure volume and volume temperature. We need to see the third relation. We saw the first two relation. Yes. So beta, up till now in states of matter, we saw the definition of matter. We know anything that occupies space and has mass is called matter. We know their arrangement, their movement, their density, energy, volume, सब कुछ देख लिया था हमने. We saw what kinetic particle theory is. Kinetic particle theory states that all matter is made of small, tiny particles which we cannot see with the naked eye, and those particles are in constant motion. Yes. And the evidence of kinetic particle theory was diffusion. Diffusion was the evidence of kinetic particle theory, and diffusion is the movement of particle from the region of higher concentration to the region of lower concentration. That is diffusion. And which factors can affect the rate of diffusion? Temperature and molecular mass. Yes, temperature and molecular mass. These are the two factors which can affect the rate of diffusion. Temperature ज़्यादा होता है तो rate of diffusion क्या हो जाती है? Temperature ज़्यादा होता है तो it increases the rate of diffusion. Yes, faster diffuse होगा. And what will happen to the mass? What will happen to the rate of diffusion when you increase the mass? Yes, when you increase the mass, the rate of diffusion will decrease because it would be difficult for the heavier molecule to move. ये बेटा हमने बात कर ली थी. Then we saw the experiment in which we placed ammonia on one side and HCl on the other side. Yes. Which one of these two gases will diffuse faster? Ammonia or HCl? Ammonia. Why ammonia? Because of its lower mass. Ammonia has lower mass, so it will diffuse faster. HCl has higher mass, so it will take time to diffuse from one place to another, from one point to another. ये बेटा हमारी बात हो गई थी. And then beta, we talked about this experiment in which we placed a glass tube in which we had bromine, and we placed another tube upside down on the first one in which we had air. तो क्या हुआ, दोनों मिक्स हो गए थे. फिर बेटा हमने स्टेट्स की बात की थी, melting, freezing, boiling, evaporation, condensation, sublimation. We know these changes beta. Heating curve की बात की थी. Heating curve में you start from solid, then you melt it into liquid, and then you boil the liquid into gaseous state. This whole curve is from solid to gaseous state. Why we have constant temperature during melting and during boiling? ये वो बस यही चलता रहेगा और पेपर तक आ जाएगा. Yes, yes, those who are online beta. Why we have constant temperature during melting and boiling? Good Hiba beta, you are right. Good Raima, you are right. Why we have constant temperature during melting and boiling? The reason for that is that the energy is being used to break the bond. The energy is being used to break the bonds to overcome the force of attraction. तो बेटा जो आप एनर्जी दे रहे हैं, it is not increasing the overall temperature. The energy that you are providing is not used to increase the overall temperature. It is used to break the bond. It is used to overcome the force of attraction between solid. क्योंकि सॉलिड की बेटा फोर्सेस को ब्रेक करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, और लिक्विड के फोर्सेस को ब्रेक करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा. So beta, you should know during the change of state, the temperature is constant. In this case, in case of melting and boiling, because the energy is being used to overcome the force of attraction. What about cooling? Cooling में हम गैस से आते हैं लिक्विड पे, लिक्विड से जाते हैं सॉलिड पे. Again, you can see during the change of state, the temperature is constant. Why is that? Because of bond formation. Because of bond formation. Bond form हो रहे हैं. The cooling effect is being used to cancel out the heat energy which is released by the particles. So एक दूसरा cancel out कर रहे हैं. So basically, generally we say in melting and boiling, the energy is being used to break the bonds. In condensation and freezing, the energy is being used to cancel out the cooling effect is used to cancel out the energy which is released by the particle या bond formation. फिर बेटा हम रिलेशनशिप्स देख रहे थे. प्रेशर टेम्परेचर हमने देखा था. प्रेशर एंड टेम्परेचर वाज डायरेक्ट और इनवर्स इन गैसेस. डायरेक्ट और इनवर्स प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप डायरेक्ट था बेटा. When you increase the temperature of the gas, the particle they gain kinetic energy. They will start to move faster. They will collide more. They will exert more force on one another, due to which the pressure will increase. Yes, pressure temperature direct है. और बेटा जितने भी रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, they are just for gases.
ये सब गैशियस रिलेशंस हैं. प्रेशर टेम्परेचर हमने देखा था डायरेक्ट है. एंड देन वी सॉ द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन व्हिच वाज इनवर्स. वॉल्यूम ज्यादा होगा, पार्टिकल विल स्प्रेड आउट, प्रेशर कम हो जाएगा. वॉल्यूम ज्यादा होगा, पार्टिकल स्प्रेड आउट, प्रेशर कम हो जाएगा. कंप्रेस करेंगे पार्टिकल, दे विल कम क्लोजर टू वन अनदर, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. तो ये बेटा हमने बात कर ली थी. एंड आई टोल्ड यू कि ड्यूरिंग दीज रिलेशन अदर थिंग्स, अदर फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट प्रेशर, दे शुड बी कांस्टेंट. Like when you will see the pressure with temperature, mass of the gas and the volume of the gas should be constant. Yes. And when you see the relation between pressure and volume, when you see the relation between pressure and volume, क्या हो जाएगा? प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन देखेंगे बेटा. Which thing should be constant? Temperature and mass. Yes, temperature and mass should be constant. So बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात बताई थी कि whenever we see the relation between two quantities, all other quantities they should be constant during the relation. Okay बेटा, तो ये हमने two relations देख लिए थे. Today we need to see the last relation, third relation. किसका रह गया? प्रेशर टेम्परेचर हो गया, प्रेशर वॉल्यूम हो गया. द लास्ट रिलेशन इज बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप. वॉल्यूम एंड temperature relationship. Obviously, these relations are for gases, not for liquids, not for solids. These all relations are just for gases, beta. Volume and temperature relationship. Can you tell me what is the relation of volume with temperature? What will happen to the volume of the gas when you increase the temperature of the gas? ज़्यादा होगा या कम होगा? When you increase the temperature of the gas, what will happen to the volume of the gas? जरा सोचे, जरा अपनी कॉमन सेंस यूज करें. टेम्परेचर ज्यादा कर रहे, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आना चाहिए इसका? वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस होती है ना. टेम्परेचर ज्यादा करने स्पेस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कम हो गई ज्यादा हो जाएगी. ओके इस बार बेटा. नहीं नोमान बेटा, जस्ट फॉर गैसेस. ओके गुड. राइमा बेटा. यस बताएं. डायरेक्ट इनवर्स. रील बेटा ये कह रहे हैं डायरेक्ट है. मुझे नहीं लगता डायरेक्ट है. क्या कहते हैं आप? इनवर्स है. जी ये कह रहे हैं इनवर्स है. कैसे भाई? ये कह रहे हैं इनवर्स है. मुझे नहीं लगता इनवर्स है, डायरेक्ट है. जी इब्राहिम. वो कह रहे हैं डायरेक्ट है. मुझे नहीं लगता डायरेक्ट. आप क्या कहते हैं? नहीं डायरेक्ट, इनवर्स है. इनवर्स भी नहीं, डायरेक्ट है. ओके बेटा. टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर directly proportional to one another. Yes, those who are saying direct proportion, you guys are right. Directly proportional. खुद सोचे बेटा, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा? पार्टिकल्स दे विल गेन एनर्जी. Particles they will gain energy and they will start to move faster. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो भी ब्रेक हो जाएंगी, दूर जाना शुरू हो जाएंगे. They have enough energy to spread out, to go away from one another. सो बेटा जितना आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे, पार्टिकल एनर्जी गेन करके दे विल स्प्रेड आउट, बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड. जितना मर्जी है चाहे वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते, जितनी ज्यादा एनर्जी होती जाएगी उतना दूर जाते जाएंगे, उतना स्प्रेड होते जाएंगे बेटा. सो यस, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर directly proportional to one another. Are directly proportional to each other. वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? मास एंड pressure. Yes, right. The fourth one was pressure. Volume and temperature are directly proportional to each other. Mass of the gas and the pressure of the gas should be constant. Mass of the gas and pressure of the gas should be constant.
mass or pressure beta, they should be constant. Mass of the gas and pressure of the gas, they should be constant. So volume and temperature are direct. सबसे पहली तो बात बेटा ये हमने digest करनी है कि they are directly proportional to one another. It means कि when you increase the temperature of the gas, the particles, they will gain energy, they will start to move away from one another, they will start to occupy more volume because they have energy to go away from one another. So they will occupy more volume, volume will increase, pressure will be constant, and mass of the gas should be kept constant during this relation. So volume and temperature are directly proportional to one another. Volume and temperature are directly proportional to one another. So pressure temperature भी direct है, volume temperature भी direct है, pressure volume जो है वो inverse है. These are the three relations beta that we should know. प्रेशर टेम्परेचर डायरेक्ट, टेम्परेचर ज्यादा करने से प्रेशर ज्यादा होता है, पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, कोलाइड ज्यादा करेंगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा. प्रेशर वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा करने से पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं, कोलाइड कम करेंगे प्रेशर कम हो जाएगा. वॉल्यूम ज्यादा करने से प्रेशर कम होता है. वॉल्यूम टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा होता है बिकॉज पार्टिकल गेन एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट टू मूव अवे फ्रॉम वन अनदर एंड दे विल स्प्रेड आउट. मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है एट दिस लेवल. Yes, in AS chemistry we'll discuss the relation of mass with pressure, which is also direct. Moles का है basically. ठीक हो गया बेटा? Any question from this? Yes. प्रेशर कांस्टेंट ऐसे होता है, आप कांस्टेंट नहीं रखते. आप बेसिकली आपने अगर देखा हो पिस्टन्स होती हैं, पिस्टन्स दे कैन मूव. तो मूवेबल पिस्टन्स होती है, जो ही प्रेशर इंक्रीज हो, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा हो सकता है, वो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो. जब टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर ज्यादा होने की कोशिश करता है, वो जो पिस्टन है ना या जो सिलेंडर है उसकी जो मूवेबल पिस्टन है ऊपर, वो ऊपर मूव कर जाती है, प्रेशर वापस वहीं पे आ जाता है. फिर जो ही प्रेशर ज्यादा होने की कोशिश करेगा वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा होने की कोशिश करेगा तो वॉल्यूम अपने आप को ज्यादा कर देगा ताकि प्रेशर वापस कम हो जाए. तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं. वॉल्यूम इंक्रीज होता है इन केस ऑफ टेम्परेचर. यस आयान बेटा, टेम्परेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करती है गैस बिकॉज द पार्टिकल विल हैव मोर एनर्जी, सो दे कैन मूव अवे फ्रॉम वन अनदर, दे विल स्प्रेड आउट. ओके बेटा, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बेटा वी नीड टू सी सम डेफिनेशंस, क्योंकि अभी तक हम बात करते रहे लेकिन अभी तक हमें सही सा इन्हें डिफरेंशिएट करना नहीं आया. द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, compounds, molecules and mixtures. We know what is an atom, लेकिन एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. फिर बेटा प्रेशर ज्यादा होगा आयान बेटा, अगर वॉल्यूम फिक्स कर दिया ना फिर प्रेशर ज्यादा होगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन बेटा, क्योंकि ये हमें पता होनी चाहिए. एलिमेंट की डेफिनेशन तो बहुत बार पेपर में आ चुकी है, तो ये भी बेटा क्लियर कर लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर्स, ताकि थ्रू आउट केमिस्ट्री अभी भी हम यूज करते रहे, आगे भी चल के हमने काफी यूज करना है. तो वी शुड नो द क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज स्टेटमेंट्स, बिटवीन दीज थिंग्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स एंड मिक्सचर. एटम क्या था? यस नरजिस बेटा, एटम क्या था? Yeah, the smallest thing which can take part in a chemical process, the smallest thing which has all the properties of an element. So we know the definition of an atom. Okay. Element define kare zara. What was the definition of an element? Yes, Rija beta. Definition of element. Yes, Mariam. Definition of an element. How do we define an element? There are 118 elements in your periodic table. There are 118 elements in your periodic table. Can you define what is an element? Element किस चीज को कहते हैं? Yes, those who are online. Okay, Shahid beta. Yes. Okay, very good, very good. Yes, those who are online beta. Can you define an element? बार बार हम कहते हैं ये कार्बन एलिमेंट है, ये सोडियम एलिमेंट है. So we should know which things should be called an element, which substances should be called an element.
किन चीजों को हम एलिमेंट कह सकते हैं, किन को नहीं कह सकते। गुड राहिम बेटा। अब बेटा सिंपल ये है, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be further broken down into a simpler substance, जिसे आप ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में नहीं लेके जा सकते बाय अ केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते आप। लेट्स से आपके पास कार्बन एलिमेंट है, तो कहता है कार्बन को ब्रेक करें आप। बेटा जब आप कार्बन को ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? कार्बन। और ब्रेक करें क्या मिलेगा? कार्बन। और ब्रेक करें क्या मिलेगा? कार्बन। On the other side, if someone say break sodium chloride, when you will break sodium chloride, you will get sodium and chlorine. लेकिन किसी एलिमेंट को जब आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेट्स से सोडियम को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सोडियम तो ब्रेक डाउन हो गई नहीं, सोडियम तो सोडियम ही रहता है। तो ऐसी चीजें जो ब्रेक डाउन नहीं हो सकती बेटा, दे कैन बी कॉल्ड एलिमेंट्स। वो अपनी ऑलरेडी सिंप्लीफाइड स्टेट में हैं। हाँ, हाथ से ब्रेक डाउन आप कर लें, बट केमिकली आप ब्रेक डाउन करिए, कोई नई चीज नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं कह सकते सोडियम को ब्रेक डाउन कर दिया कार्बन बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। सोडियम विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम। हाथ से अगर आपने लेट्स से यू हैव अ लंप ऑफ सोडियम, आप उसे ब्रेक डाउन कर दिया, यू विल गेट टू पीसेस ऑफ सोडियम, अगेन इट विल बी सोडियम। तो एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस बेटा which cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. Kindly write down this definition, बहुत बार पेपर में आ चुकी है बेटा। An element is a substance which cannot be further broken down, which cannot be broken down into a simpler substance. An element is substance which cannot be broken down into a simpler substance, by a chemical process. By a chemical process. An element is a substance which cannot be broken down into a simpler substance by a chemical process. Okay. आप केमिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हाथ से ब्रेक डाउन कर ले, लेकिन हाथ से ब्रेक डाउन करने के बाद भी यू विल गेट द सेम थिंग एंड द सेम थिंग एंड बेशक ब्रेक डाउन करते रहे। मुझे बताएं व्हाट इज दिस केमिकल प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस से क्या मतलब है? यस, you cannot break down an element with the help of a chemical process. What is a chemical process? Yes, Hussein, what is a chemical process? Chemical process क्या होता है? वो पुरानी है शहीर बेटा। Rahim, you are saying chemical process is a reaction. Yes, chemical process बेटा involves heat. क्या आप सोडियम को हीट करके ब्रेक डाउन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सोडियम को हीट करेंगे क्या होगा? सोडियम को हीट करेंगे क्या होगा? इट विल मेल्ट। यू विल हैव सोडियम बट इन मोल्टन फॉर्म। तो ब्रेक डाउन होगी, कोई और चीज तो नहीं बनी ना। सो केमिकल प्रोसेस मीन्स हीट बाय लाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इन केमिकल प्रोसेसेस वी यूजुअली यूज दीज थिंग्स। आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पता क्या यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, या फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या यूज होता है? लाइट यूज होती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी यूज हो, दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड केमिकल प्रोसेसेस, एंड यू कैन नॉट ब्रेक डाउन एन एलिमेंट बाय अ केमिकल प्रोसेस। हाँ, अगर आप कहते हैं हाथ से मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, फिजिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यस यू कैन डू दैट, बट अगेन यू विल गेट द सेम एलिमेंट। But you cannot break down an element with the help of chemical process. Chemical process means with the help of heat, light, और इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रोसेस का ये मतलब होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें यूज करके आप एलिमेंट को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। एलिमेंट इज ऑलरेडी इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। एक सिंपलेस्ट वर्जन ऑलरेडी है आपके पास, इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते।
लेट्स से सोडियम क्लोराइड है बेटा, जस्ट सुन लें। सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? सोडियम एंड क्लोरीन। यस, तो सोडियम क्लोराइड इज नॉट एन एलिमेंट, वी नो दैट. But if someone says, can we break down sodium into something else? The answer is we cannot break down sodium into something else. Sodium is already in its simplified form. And same goes for chlorine. Chlorine is already in its simplified form. You cannot further break down chlorine. तो बेटा एलिमेंट वो चीज होती है ऑलरेडी जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. एंड फ्रॉम अर्थ वी डायरेक्टली गेट दीज एलिमेंट्स, तो हमें एलिमेंट्स को डायरेक्टली मिल जाते हैं. यस. नहीं, मतलब सोडियम एलिमेंट है और किस एलिमेंट ब्रेक डाउन करें? ओरिजिनली अर्थ से आते हैं एलिमेंट्स कुछ, और या डायरेक्टली कंपाउंड की फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं. जैसा सोडियम मेटल है, पोटाशियम मेटल है, एल्यूमिनियम, ये तो एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन कुछ जो है क्लोरीन गैस है Cl2, उसमें दो एटम्स ऑफ क्लोरीन, टू एलिमेंट्स ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट, टू एटम्स ऑफ क्लोरीन एग्जिस्ट. तो बेसिक जो चीज होती है जो कंपाउंड को बनाने में, मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प आउट करती है, वो एलिमेंट्स होते हैं. और एलिमेंट्स की भी कौन सी फॉर्म होती है? एटॉमिक फॉर्म. Okay, so beta, this is an element, and in periodic table we have 118 elements. In periodic table we have 118 elements. In periodic table we have 118 elements, and we cannot break down these elements into their simplified forms. They are already in their simplified form. तो और further breakdown बेटा नहीं कर सकेंगे आप. हाँ, आपके मैंने कोई सोडियम का लंप उठाया हुआ है, लार्ज पीस उठाया, मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, फिजिकली यू कैन डू दैट. और अगर फिजिकली ब्रेक करने के बाद भी यू विल गेट द सेम थिंग. इट्स नॉट लाइक यू विल गेट समथिंग एल्स, यू विल गेट अ न्यू थिंग. नो, यू विल गेट द सेम थिंग एट द एंड. एंड यू कैन ब्रेक डाउन कंपाउंड, यू कैन ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, उन्हें ब्रेक डाउन किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट ब्रेक डाउन एन एलिमेंट. एलिमेंट दे एग्जिस्ट नेचुरली in their original form, and you cannot further break down them into simplified versions. Okay, molecule. आइडिया है किसी को? You know what is an atom? The smallest thing which can take part in a chemical process is an atom. The smallest thing which can take part in a chemical process is an atom. Second element, the simplified substance, which cannot be further broken down into a simpler substance by a chemical process. Element सबसे simplified version होता है और break down नहीं कर सकते. Element की छोटी form को हम atom कह रहे होते हैं. अगर आप एक element का small piece निकाल लेते हैं, that will be called an atom. बट एलिमेंट से और कुछ नहीं बन सकता. एलिमेंट फर्दर ब्रेक डाउन होके कुछ और नहीं बना सकता. मॉलिक्यूल क्या होता है? ओके उबैदा बेटा. यस, कम ऑन. यस. गुड ईमान बेटा. ओके, वेरी गुड. बेटा मॉलिक्यूल बनता है व्हेन वी कंबाइन टू सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट्स. दो सेम एलिमेंट्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और दो डिफरेंट एलिमेंट्स भी मिलके मॉलिक्यूल बना सकते हैं. व्हेन two or more similar or different elements chemically combine. फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, पहले सुन ले फिर डेफिनेशन लिख पाता हूं. इधर देखिए, ये क्लोरीन है, एक एलिमेंट, एक एटम है क्लोरीन का, another atom of chlorine. When they will combine, you will get what? Cl2. This Cl2 is called a molecule. Two similar atoms, they will chemically combine. Chemically combine का मतलब बॉन्ड बनाएंगे. और आपने बॉन्ड बनाया हुआ है. Cl2 में सिंगल बॉन्ड होता है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाई हुई आपने. So they chemically combine to form a molecule. Similarly, hydrogen, oxygen, hydrogen. You have two elements, hydrogen and oxygen, two different elements, oxygen and hydrogen. They chemically combine to form what? Water, which is H2O. H2O is a molecule. So molecule में क्या होता है बेटा? When two or more similar or different atoms chemically combine.
सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। केमिकली जब कंबाइन करते हैं यू गेट अ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली बात बेटा जो हमें लिखनी है वो हमें ये पता होनी चाहिए, व्हेन टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट, when two or more similar or different atoms chemically combine, atoms chemically combine together, when two or more similar or different atoms chemically combine together, they form a molecule. They form a molecule. दो सेम हो बेटा या दो डिफरेंट एटम्स हो, when they chemically combine they will form a molecule. Okay अभिया बेटा, गुड शहीर बेटा, no NaCl is not a molecule. अभी मैं बात करता हूं आगे चल के। ठीक होगी बात। सबसे पहली बात ये याद रखनी है हमने कि जब दो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, व्हेन दे कंबाइन यू विल गेट अ मॉलिक्यूल। सेकंड थिंग बेटा, सेकंड थिंग इज यस, केमिकली नॉट फिजिकली। ये ना मिक्स करते रहे बेटा, मिक्स करने से कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनता। आपके मैंने क्लोरीन लिया और एक हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, नो दैट इज नॉट अ केमिकल प्रोसेस। Chemical process means there should be some sort of bonding. A new thing should be formed. And it's different from a mixture. Mixture different चीज होती है। यस नूर बेटा, वो भी है, दोनों है। ओके अब बेटा एक तो बात ये है, एक तो बात ये है, when two or more similar or different atoms chemically combine together they form a molecule. जो मॉलिक्यूल का वर्ड है, मैंने आपको ये पहले ही बात बताई थी, द मॉलिक्यूल वर्ड इज जस्ट एसोसिएटेड विद द कोवेलेंट सब्सटेंसेस। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि क्या हम सोडियम क्लोराइड को मॉलिक्यूल कह सकते हैं? कभी आपने सुना है सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल? नहीं सुना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक के लिए कभी मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं हो सकता। आयनिक के लिए कभी मॉलिक्यूल का वर्ड यूज नहीं हो सकता। तो बेशक यहां पे मेंशन कर ले बेटा, वर्ड मॉलिक्यूल इज जस्ट फॉर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। वर्ड मॉलिक्यूल इज जस्ट फॉर कोवेलेंट सब्सटेंसेस। जी आयान बेटा, साथ या डेफिनेशन सिर्फ पता होनी चाहिए। बर्न कर सकते हैं, बर्निंग इज नॉट, burning will melt that substance, will not break down that substance. Melting is different. ब्रेक डाउन करने का मतलब होता है कोई नई चीज बने। यस नोमान, यू आर राइट। ठीक होगी बात, ये बात सही है। जिससा बेटा आपसे कोई पूछे H2 क्या है, इज इट अ मॉलिक्यूल? इज इट अ मॉलिक्यूल H2? यस इट इज। NH3, इज इट अ मॉलिक्यूल? अमोनिया मॉलिक्यूल, यस। इसी तरह से पूछे फ्लोरीन F2, इज इट अ मॉलिक्यूल? यस। ये सारे कोवेलेंट भी हैं और सिमिलर और डिफरेंट भी हैं। तो डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, प्लस बेटा यू शुड नो दे शुड बी कंबाइंड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। टू डिफरेंट ये हो गए ना, NH3 हो गया वैदा बेटा, ये NH3 टू डिफरेंट है, H2 में दोनों सेम है, F2 में दोनों सेम है, वाटर में दो डिफरेंट है, HCl में दो डिफरेंट हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन में दोनों सेम है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। उसकी भी डेफिनेशन आ रही है राइमा बेटा। तो बेटा सबसे पहले याद बात रखना, मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है व्हेन टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं, व्हेन दे केमिकली कंबाइन यू विल गेट अ मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल सेकंड कंडीशन क्या है? कोवलेंट होने चाहिए। आयनिक आ गया, बेशक दो डिफरेंट हैं। आप कहें सर सोडियम और क्लोराइड दो डिफरेंट हैं, मॉलिक्यूल कहना चाहिए, नहीं, मॉलिक्यूल का वर्ड इज जस्ट एसोसिएटेड विद कोवेलेंट, इट इज जस्ट फॉर कोवेलेंट सब्सटेंसेस।
ओके डन। अब बेटा आ जाए कंपाउंड पे, कंपाउंड पे आ जाए। अब आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा, फिर कंपाउंड किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुनना, हमेशा मिक्सअप ही होता रहता है, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। ठीक है, मॉलिक्यूल में टू आर मोर सिमिलर और डिफरेंट भी हो सकते हैं, केमिकली कंबाइन हो, मिक्स नहीं, केमिकली, फिजिकली नहीं, केमिकली, मतलब बॉन्ड हो, रिएक्शन हुआ हुआ हो, और कोवेलेंट के साथ एसोसिएटेड है द वर्ड मॉलिक्यूल। कंपाउंड, यस, देन व्हाट आर कंपाउंड्स? किसी को आइडिया कंपाउंड्स क्या होते हैं? यस, टू और मोर, यस यू आर राइट, यस फैजान, सेम, यस दोज हु आर ऑनलाइन। फिर कंपाउंड क्या चीज होगी? अब बेटा कंपाउंड्स में कैसे डिफाइन करते हैं? कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस इन विच टू और मोर डिफरेंट, सिमिलर वाली कैटेगरी आउट, two or more different elements chemically combined, two or more different elements chemically combined together। इसमें सारे कोवलेंट भी आ जाते हैं, इसमें सारे आयनिक भी आ जाते हैं। कोवेलेंट वाले तो मॉलिक्यूल भी हैं, मॉलिक्यूल भी है ना कोवेलेंट वाले इसी वजह से आपने सुना होगा वाटर मॉलिक्यूल भी है, वाटर को कंपाउंड भी कहते हैं। एक H2O निकालेंगे, आप कहेंगे ये तो मॉलिक्यूल है वाटर का, पूरे वाटर का क्या, ये वाटर कंपाउंड है। तो कंपाउंड बेटा सिमिलर नहीं है इसमें। when two or more different elements chemically combine together, when two or more, not similar, similar वाले सिर्फ मॉलिक्यूल कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते। when two or more different elements chemically combine together, when two or more different elements chemically combine together, different elements chemically combine together, a compound is formed. When two or more different elements chemically combine together, a compound is formed. तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा जी, अब कंफ्यूज नहीं करना इसे मॉलिक्यूल के साथ, वाटर, वाटर क्या है? मॉलिक्यूल तो था ही, क्योंकि इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल एंड इट वाज अ कोवेलेंट सब्सटेंस एज वेल। तो वाटर वाज अ मॉलिक्यूल, बट वाटर कैन आल्सो बी कॉल्ड अ कंपाउंड। वाटर को कंपाउंड भी कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, two or more different elements are there, it can be called a compound। Can we call sodium chloride a molecule as well? No, because molecules are just for covalent, covalent substances, they can be called as molecule। ठीक है, सिमिलरली बेटा जब बात सुनते जाएं, सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे पोटाशियम फ्लोराइड, potassium fluoride, is it a compound or a molecule? Yes, Madina beta, you can break down a molecule into elements, but elements cannot be further broken down into something else। Like मैंने आपको एग्जांपल दी ना, हाइड्रोजन H2 है ना, वो हाइड्रोजन H2 ब्रेक डाउन होके हाइड्रोजन एलिमेंट में आ जाएगा, लेकिन वो हाइड्रोजन एलिमेंट फर्दर ब्रेक डाउन होके और तो कुछ नहीं बन सकता, हाइड्रोजन से कोई और सोडियम कुछ और नहीं, कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन एलिमेंट ही होता है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड ब्रेक डाउन हो सकते हैं, elements they cannot be further broken down into simpler substances, yes। अच्छा, so when two or more different elements chemically combine together, when two or more different elements, atoms chemically combine together, they form a compound। तो बेटा जी इसमें ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, नॉट एवरी, ईमान बेटा नॉट एवरी, वो कह रहे हैं एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड, एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। मैं आपको कहता हूँ Cl2 है, Cl2 कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन में डिफरेंट होनी चाहिए, मॉलिक्यूल में सेम होते हैं।
ठीक है, मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, इधर देखिए जरा, ये देखिए, H2 अगर आपसे कोई पूछे क्या है, H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, क्या मैं H2 को कंपाउंड भी कह सकता हूं? द आंसर इज नो, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इज वी शुड हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स। डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज टू सेम, सिमिलर भी हो सकते हैं और टू डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों हैं। सिमिलरली वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है, टू डिफरेंट भी है और कोवेलेंट भी है, टू डिफरेंट भी है और कोवेलेंट भी है, इट कैन बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। क्या वाटर कंपाउंड भी कह सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि कंपाउंड की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड इज टू डिफरेंट एलिमेंट शुड बी देयर। ओके, सिमिलरली अमोनिया, यस बेटा, अमोनिया क्या कह सकते हैं, अमोनिया को टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में भी आ रहा है, कंपाउंड की डेफिनेशन में भी आ रहा है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में भी आ रहा है, कंपाउंड की डेफिनेशन भी आ रहा है, और क्योंकि कोवेलेंट भी है तो मॉलिक्यूल तो है ही है, कोवेलेंट में कंपाउंड भी आ जाते हैं, कंपाउंड में कोवेलेंट भी आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों आ जाएगा। सिमिलरली बेटा, अगर आपसे कोई कहे MgCl2, इधर ध्यान दें, अब सुनना है, इधर मिक्सअप ना करना है इसे। यस राहिम, अब सुनना है इसे, MgCl2 मॉलिक्यूल है या नहीं है? मॉलिक्यूल है या नहीं है? नहीं है। सुने क्यों नहीं है? अब बच्चे कहे सर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में आता है टू डिफरेंट एलिमेंट, सो वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन साथ हमने ये भी लिखा द थिंग शुड बी कोवेलेंट। MgCl कोवेलेंट है? नो इट्स नॉट कोवेलेंट, इट्स एन आयनिक सब्सटेंस। तो बेटा आयनिक के लिए मॉलिक्यूल का वर्ड होता ही नहीं है। आयनिक जितने भी हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। सो MgCl इज जस्ट अ कंपाउंड, नॉट अ मॉलिक्यूल। तो बस ये बेटा डिफरेंस रखना है आपने मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बीच में, ये डिफरेंस रखना है कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे आपने बताना है CO2। यस दोज हु आर ऑनलाइन, CO2 एलिमेंट है? CO2 एलिमेंट है? CO2 एलिमेंट है? नहीं, एलिमेंट तो नहीं है। सेकंड, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, या दोनों हैं? यस, इज इट अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड और बोथ? गुड राहिम, गुड राइमा, गुड रानिया, गुड इस्पा, गुड नोमान, गुड आयान। यस, वो तो कह रहे हैं ऑनलाइन वाले सारे मॉलिक्यूल है, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं पक्का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बोथ, बिकॉज यू हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स प्लस इट्स अ कोवेलेंट सब्सटेंस, सो इट शुड बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, इट शुड बी कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। एंड मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके पास कहाँ आते हैं, कंपाउंड के अंदर भी आते हैं, इफ दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। सो यस, बोथ है, बोथ। डिफरेंस क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपस में हम कभी कभी मिक्स अप करते रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बस याद रखना है टू डिफरेंट हैं, वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड तब होगा, दोनों तब होंगे जब कोवेलेंट भी, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। अगर दो सेम है, दो सेम एलिमेंट्स है, वो जस्ट मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं, तो कंपाउंड की डेफिनेशन टू डिफरेंट आने चाहिए। अगर आयनिक है, जस्ट कंपाउंड, आयनिक है तो कंपाउंड, वो तो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता। तो ये बेटा डिफरेंस आपने रखना है, इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड अक्सर बेटा बोथ, बोथ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बोथ, क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर है टू डिफरेंट एलिमेंट्स एज वेल एज इट्स अ कोवेलेंट सब्सटेंस, और कंपाउंड की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई कर है टू डिफरेंट एलिमेंट, दोनों होने चाहिए, नॉट जस्ट वन। ओके, एक लास्ट डेफिनेशन है बेटा, मिक्सचर। मिक्सचर पे आ जाए जी, किसको डेफिनेशन आती है मिक्सचर की? मिक्सचर क्या होता है?
फिजिकल चेंज को मिक्सचर कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी बेटा, इफ यू डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, आपने वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर दिया, क्या सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई नई चीज बना दी है उसने? क्या आप नई चीज पी रहे हैं? नहीं, इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स। वो केमिकली कंबाइन नहीं हुई, दे आर फिजिकली कंबाइंड विद वन अनदर, नॉट केमिकली। तो मिक्सचर्स, अब एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, आर दे रिएक्टिंग विद वन अनदर? क्या एयर में कोई नई चीज बनी हुई है? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट, ऑक्सीजन सेपरेट, नाइट्रोजन सेपरेट, noble gases separate. So what is going on? What is air then? It's not a compound, it's not a molecule, it's not an element. It's a mixture of different gases. So mixture is better when two or more substances are physically combined. They are not chemically combined with one another. A mixture consists of two or more substances, very good, that are not chemically combined, that are physically combined. So a mixture is when two or more substances physically combined with one another. Physically combined with one another. A mixture is when two or more substances physically combined with one another, with each other. Like हमें पता है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एयर इज अ मिक्सचर, अलॉयज मिक्सचर है, मिल्क मिक्सचर है। तो यू कैन मेंशन दीज एग्जांपल्स बेटा। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल 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 नॉन मेटल मिक्सचर को अलॉय कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यस, मीथेन, मीथेन आपका मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, कंपाउंड तो है। टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल भी है, और कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो मॉलिक्यूल भी होगा। तो वो वहां पे आएगा मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों में। अगर मीथेन और हाइड्रोजन दोनों आपस में, या मीथेन और ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो दैट विल बी कॉल्ड अ मिक्सचर। दे आर नॉट रिएक्टिंग विद वन अनदर, दे आर मिक्स टुगेदर। रिएक्ट करेंगे तो कोई नई चीज बनेगी ना, रिएक्ट करेंगे तो नई चीज बनेगी। सो बेटा, NaCl एंड वाटर, NaCl एंड वाटर, रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन। So it's not a chemical change. So NaCl and water, it will be a mixture. Mixture is a physical change. Mixture is a physical change. बेटा जब आपने दोनों चीजों को रिएक्ट करवा दिया, वो केमिकल चेंज होती है। अगर जैल बेटा आपने सीधा मिक्स किया हुआ, रिएक्ट नहीं कर रहे, कोई नया कंपाउंड नई चीज नहीं बन रही, तो वो फिजिकल चेंज है। यस, एक्वा सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स बेटा। जब वाटर के साथ मिक्स किया हुआ है, मिक्सचर ही है हमारे पास, नॉट केमिकली कंबाइंड। यस। सो बेटा आप देखिए, बिल्कुल माइनर माइनर डिफरेंसेस है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों में, क्योंकि थ्रू आउट chemistry we use these terms: elements, atoms, molecules, compounds, mixture. So we should be very clear about these terms. Atom, the smallest thing which can take part in a chemical process. Element, the simplest substance which cannot be further simplified. Element is a substance which cannot be further simplified by a chemical process. सोडियम मेटल है, पोटाशियम है, तो सोडियम को ब्रेक नहीं कर सकते। सोडियम ब्रेक हो गया, क्या बनेगा? सोडियम ही बनेगा ना। तो दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। मॉलिक्यूल, when two same or different elements chemically combine together, you get a molecule and it should be covalent. Compound, when two or more different elements chemically combine together, you will get a compound। और all covalent, जिनमें दो different elements हैं, all ionic, they fall under compound, they fall under compounds। and mixture क्या होता है? when two or more substances physically combine। फिजिकल का मतलब होता है रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई नई चीज नहीं बनी, जरा मिक्स हुए में आपस में। ठीक है, तो ये बेटा डिफरेंस आपने रखना है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस?
Yes, those who are online, बेटा कोई चीज पूछनी है पूछ लें. Tomorrow I will go through these things again and then we will see some questions, बेटा. फिर मैं कुछ क्वेश्चन देखूंगा from states of matter. So बेटा आपने एक दफा जाके इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करके आना है. Memorize all the definitions because definitions they should be exact. ठीक है? So tomorrow we will solve some questions from states of matter. So you should know solid, liquid, gas, their arrangement, their movement, diffusion, the experiments of diffusion, the factors which can affect diffusion, kinetic particle theory, melting, boiling, freezing, condensation, sublimation, heating and cooling curves, three relation definitions of elements, compounds, mixtures, and molecules. Done, beta? Any question? जी पूछ लेना. इसके बाद फिर हमारी इस टॉपिक के बाद हमारी असर वाली केमिस्ट्री स्टार्ट होती है. ये तो अभी हम इंजॉय कर रहे थे. इट्स वेरी इज नॉट डिफिकल्ट. मुश्किल है सॉलिड लिक्विड गैस अरेंजमेंट मूवमेंट डिफरेंस बताना. पार्टिकल हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं. मैथ ज्यादा होगा तो स्लो हो जाएंगे. टेम्परेचर ज्यादा होगा फास्ट हो जाएंगे. फ्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग क्या होती है. हीटिंग कूलिंग कर्व क्या है. टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होता है. तो वही बेसिक चीज है बेटा. ओके बेटा फिजिक्स वाले दे कैन लीव. केमिस्ट्री नॉट फिजिक्स वाले. केमिस्ट्री वाले दे कैन लीव. फिजिक्स वाले जस्ट वेट फॉर अ मिनट टू स्टार्ट.